مرزا صاحب عیسیٰ میں اور یسوع میں فرق کرتے تھے. بشپ صاحب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا. بشپ صاحب دیکھیں سوال کا ارے بھائی جواب میں آپ آپ بھی سے دینا ڈیبیٹ کرنے دیکھیں بھائی میں نبی صلی آپ اللہ مرزا علیہ صاحب کو وسلم مانتے ہیں نہیں مانتے جو بھی مانتے ہیں میرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں کہ مرزا صاحب کا مجھے عقیدہ کیا معلومات تھا. میں آپ کی اضافہ نہ کرتا ہوں. جی آپ کی بس اتنی سی گزارش ہے کیا مرزا صاحب عیسیٰ کو اور یسوع کو الگ مانتے تھے ایک مانتے تھے بس یار اتنا سا بتا دیں. ایک منٹ بشپ ڈونٹ ڈو دیٹ اوکے ادھر مجھے بتاؤ آپ نے نبی یار صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا؟ ایک وقت میں ایک بھائی ذرا بات کرے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. نبی صلی اللہ علیہ میں نے صرف اتنی سی گزارش کی ہے کہ مرزا صاحب یسوع کو اور عیسیٰ کو دو الگ ہستیاں مانتے تھے یا ایک ہی ذات مانتے تھے, نبی صلی اتنا سا اللہ بتا علیہ دیں وسلم صرف. کو نبی مان لیا ہے آپ نے, ابھی یہ سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. بشپ صاحب آپ کیا بھی سوال کا مانتے ہیں؟ جواب دینا. ان کو نبی مان لیا. ہاں جی کیا جواب میرا سوال کا میرا جواب دیں گے, میرا جواب دیں گے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں نے سوال کیا آپ نے اٹھا کے 10 سوال کر دیے یار. میں نے صرف اتنی گزارش کی ہے کہ مرزا صاحب یسوع کو اور عیسیٰ کو دو الگ ذاتیں مانتے تھے یا ایک ہی ہستی مانتے تھے. کو نبی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. عیسیٰ پہ بات ہو رہی ہے نا, پیغمبر اسلام پہ آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں پھر آپ نے 5واں سوال شروع کر دیا ابھی آپ نے. ہو ادھر ہیلو ادھر میری بات سنو, سوال کا جواب نہیں دیا. سوال کا نہیں میں نے جو سوال کیا تھا میں نے کوئی مرزا صاحب کی شان میں گستاخی محمد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے کیا ہوگا, ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ اچھا آپ یہ کر رہے ہیں کون سے والے کس کی بات کر رہے ہیں, یہ قادیان والے یا مکہ والے کی بات؟ ہاں جی یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مسیحوں کو کنفیوژن ہے نا, مرزا قادیانی کے دعوے دیکھ کر وہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ مانتے ہیں نبی. بالکل کنفیوژن ہے, مرزا صاحب نے کنفیوژن پیدا کر دی. مانتے ہیں اب ان کو پہلے الگ کر کے بتانا پڑے گا کہ محمد عربی الگ ہیں, مرزا صاحب الگ ہیں, دعویٰ ان کا ہے محمد ہونے کا. یہ مسیحیوں کو ہمیں سمجھانا پڑے گا پہلے. نہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے نا, وہ کنفیوز ہو رہے ہیں نا, اس لیے جواب دے نہیں پا رہے. کرسچن کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حوصلہ نہیں ہے آپ میں. نہیں کرسچن کے ساتھ وہ کنفیوزڈ ہے نا. اب یہ ابھی ہم کیا بتائیں عیسائیوں کو, مسیحیوں کو کہ محمد کون سے والے. ایک منٹ یار, بڑا انٹیلیجنٹ سوال میں نے کیا. ایک منٹ آپ حوصلہ کریں بس. بشپ بھائی بشپ بھائی جی پوچھیں. سوال آپ سے کیا میں نے کہ جو مکہ میں میں نے جو سوال کیا تھا اس میں کسی قسم کی گستاخی یا کوئی کم ظرفی یا کوئی غلط بات آپ نے کہی ہو تو مجھے بتائیے, میں معذرت کر لیتا اس کے لیے. یار سن لو نا سوال کے جواب دیتے جائیں یار. نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوال کیا, میں نے تو کیا کرایا, تو میں نے کچھ بھی نہیں, میں نے صرف اتنا سا پوچھا ہے کہ مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی. اچھا اس کا عیسیٰ کا اور یسوع سے کیا تعلق ہے, کو مانے یا نہ مانے, جو آپ سے پوچھا اس کا جواب دیں. بتاتا ہوں ابھی آپ کو تعلق بتاتا ہوں آپ کا. بتاؤ آپ مانتے ہو تو بتا دیں یار پیارے بھائی, ایک ٹاپک کر کے بات کریں گے تو زیادہ مزہ آتا ہے. نہیں بتاتے ہیں نا, ابھی آپ پہ بات کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ میں کرسچن ہوں, کرسچن والا جوز ہوں, پتہ نہیں کیا. نہیں میں نے بتا تو دیا, میں سارے کے سارے جانتے ہیں, مجھے سارے جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں, میرے عقیدے کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں. میں مسیحک جوڈائزم سے تعلق رکھتا ہوں. اپنا عقیدہ واضح کریں او بھائی, اپنا بتا تو دیے میں نے یار, اور میں کیا بتاؤں, اب میں لکھ کے دکھاؤں آپ کو. اگر آپ کو مسیحک جوڈائزم نہیں بولنا آتا تو اس میں میرا قصور تو نہیں مانتے کہ پہلے. نہیں مانتے بھائی, مجھے نہیں نا پتا. نہیں تو اس کا مجھے بتا, اس کا میرے عقیدے سے کیا تعلق ہے. اس کا میرے عقیدے سے کیا تعلق ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتے ہیں ان کو, نہیں نبی مانتے ہیں ان کو کہ نہیں؟ چلے مجھے بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے ماننا ہے. نہیں مجھے ماننے کا کہیں پہ حکم ہے نہیں مانتے. نہیں مجھے حکم ہے ماننے کا. مرزا کا دفاع کرے گا کہ نہیں کرے گا, تو بکواس کرنا جو کروانا چاہتا ہے نا مجھے. پاک ہستی کا دفاع کر رہا ہوں میں, اسی پاک ہستی کا دفاع کر رہا ہوں. یہ بتائے مجھے, مانتا ہے کہ نہیں مانتا. مانتے ہو نبی؟ السلام علیکم. یہ زیادہ سکے بن کے آ جاتے ہیں یار.
कि हम लोग हैं, हमें खत्म नबूवत के मुजाहिद ना, इनका सिर से ताल्लुक न पैर से ताल्लुक बिना हो जाती है। मैंने गुजारिश ये की थी कि मिर्जा साहब जो है ईसा और यीशु को अलग मानते थे या एक जात मानते थे, इतनी सी गुजारिश की। उसको खुदा मानो, कोई उसका ये नहीं, मैं नहीं मानता। ये सारे ये आपके जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं वो खुद सब गवाही दे देंगे, मसीहानिक जूडाइज्म जो है वो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानती। आगे बात करें। अब ये जो इसलिए तो मैं ऊपर आया हूँ कि मिर्जा साहब ने ये जो कहा कि ईसाइयों ने खुदा बना के रखा है, मिर्जा साहब को मेरे ख्याल से लगता है कि अकीदे को पता भी नहीं था क्रिश्चियंस के। हाँ, तो फिर कुरान में लिखा ना ये बात। नहीं, कुरान में मिर्जा साहब ने क्या आयत कोट की है? नहीं, कहाँ पे? चले कुरान की आयत कोट करते, मिर्जा साहब ने कुरान की कौन सी आयत कोट करके कहा था कि ईसाइयों ने खुदा बना के रखा है? जबकि शाह साहब भी आपको हवाला देके गए हैं, आपको सूरा यूनुस की और सूरा तौबा क्या बंदे हो यार आप। आपसे किसी बात का जवाब, शाह साहब को भी आपने गोल गोल घुमाया है 1-1.5 घंटा, ठीक है। अब आप एक सवाल का जवाब भी देना पसंद नहीं कर रहे यार, ऐसे तो नहीं करें। मिर्जा साहब को यीशु मसीह के खुदा होने पे तराज था या बेटा होने पे तराज था? प्यारे भाई बता दें। तो सारे पादरियों जी सॉरी, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं भैया। अपने दौर में सारे पादरियों को आगे लगाया होता ना, ये जो सारे मौलाना है ना उस दौर के जो उनके बच्चे हैं, इनसे बात भी नहीं थी होती ईसाइयों पादरियों से, उन्होंने सबको फड़काया था। किन्होंने फड़काया था? नहीं भाई म्यूट ना करें, इन्हें बात करने दें। हाँ जी, किसने किसको फड़काया था? हैं? ना चलो फड़काया था तो मिर्जा साहब ने अपनी उम्मत के बारे में क्या कहा था कि वो जवाब दे के क्या कर देंगे? नहीं, इस तरह से नहीं कहा था। जिस तरीके से उन्होंने बात की थी वैसे ही बता देंगे कि ऐसे जवाब देंगे तो कहां से निकल के तो कहां पे चले जाएंगे। पूरी बात किया करें ना। मिर्जा साहब के तो आपको अखबार ज़रिए बयान करते हुए आपको क्यों पता नहीं तड़फड़ पड़ जाते हैं। जी क्या कहा था मिर्जा साहब ने? बात करें, पढ़ के सुनाए ना, मिर्जा साहब की बातें पढ़ के सुनाया करें ताकि हमारी रूह जो है ना वो जिंदा हो मिर्जा साहब की प्यारी प्यारी बातों से। तो मैं तो दलील मांग रहा हूँ ना। अभी आप आके बोल रहे हैं कि जी आप क्रिश्चियन हैं, कि जी आप ईसाई हैं, तो इसका मतलब है मिर्जा साहब ईसाई और क्रिश्चियन में फर्क समझते थे। यीशु को और क्या कहते हैं ईसा को दो अलग हस्तियां मानते थे। आपको हसाई कहें तो आप गुस्सा कर जाते हैं, आपके दोस्त। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता। मैं हुई नहीं तो यार, मैं जब हुई नहीं ओ प्यारे भाई, ओ सारे के सारे को ना, सारों को आप एक ही पलड़े में। मैं मसीहानिक जूडाइज्म से सारे भाई यहाँ पे जितने बैठे हैं इस बात को जानते हैं कि मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं ईसाई भी नहीं हूँ, मैं मसीहानिक जूडाइज्म से ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है। मैं ख्रिस्ती कहता हूँ अपने आप को। बताइए, इतराज करें इस पर, क्या मसला है इसमें? आपने मेरी कब्र में तो नहीं जाना। मैं अपना अकीदा जब अपने मुंह से बता रहा हूँ तो बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतराज करें मेरे अकीदे पे, मसीहानिक जूडाइज्म पे करें, इतराज करें, मेरे ख्रिस्ती होने पर इतराज करें, क्या मसला है इसमें? और आगे और भी बता दूं, और भी यही अकीदा पूछते हैं जो देवबंदियों पर, एलवियों, चिश्तियों, कादरियों, फलाना टमका। मैं बता देता हूँ, हाँ जी मैं मसीहानिक जूडाइज्म था, मैं गलीली मिज़राखी इफ्राइमी यहूदी हूँ, ठीक है। करें इतराज, बिस्मिल्लाह करें, मैं ताबेदार हूँ। करें बात प्यारे भाई। पता है आप जो है ना दोनों पर चूड़े बने हुए नहीं। उन मुसलमानों उन सरकारी मुसलमानों ने वजह नहीं देनी है। उन तुसी हकीकी मुसलमान जड़े जे करो इतराज तो मैं देना जवाब। बिस्मिल्लाह करो। मेरे कीदे ईमान ते कीड़ा कढो, मैं देना जवाब होता। बिस्मिल्लाह। ईसा को क्या मानते हैं? नबी मानते हैं? क्या मानते हैं? हाँ जी, खुदा का बेटा मानते हैं। मानते हैं आप? हाँ जी, रूहानी तौर पर बेटा मानते हैं। हवाला दे दूं बाइबल में से, रोमियो पहले बाब की 2-3 आयत पढ़ लें, जो भी लिखा है बेटा मानते सामने आपके। ये भी मानते हैं जी, ये भी मानते हैं आप ना बिशप साहब, ये भी मानते हैं मिर्जा साहब को खुदा का बेटा।
मानते बताओ तो अच्छी दो बात है, वाला। क्या मसला? तो मसला भाई, मसला हाँ जी, क्या है ना? नजर चुप कर जाओ ना नजर गल भाई, करांगे। भाई बकवास क्या बयानी ना करता है करें। सीधा मेरे को सुन यार रहा है। एक मिनट ऐसे ना करें, एक मिनट भाई, बिशप भाई, ऐसे ना बिशप करें। भाई, देखिए बिशप भाई, इस देखे ना, गुस्से में आने से ना मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे के इख्तलाफात को दूर नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। अगर मिर्जा साहब भी अपने आप को बेटा मानते थे और ऊपर जो है ना वो सैफ साहब कह भी रहे थे कि अगर इस तारे के रंग में उन्होंने अपने आप को बेटा कह भी दिया है तो मसला क्या है? अभी देखे ना, नबी जब आता है, अल्लाह ताला जब उनके ऊपर इल्हाम करते हैं तो इल्हाम का कोई मकसद होता है या अल्लाह ताला में चुके इल्हाम दे देते हैं? जी साकिब आरबीडी साहब, नबी के ऊपर जब अल्लाह ताला इल्हाम करता है, सुन लेना किबला मुझे समझाना है, मैं इतराज नहीं करूंगा। आपका जो भी अकीदा, सुन ले मेरी बात पहले सुन ले। मैं डिबेट नहीं करता, मैं डायलॉग करता हूँ। मैं डायलॉग में पढ़ा लिखा इंसान हूँ, गलती से अपने को 18 जमाता पढ़ लें उनमें 10 कितने जावा मैं, ठीक है? तो मैं डिबेटा डबूटा नहीं करता, क्योंकि डिबेटा के चक्कर से ना इंसान फिर एक दूजे को हरान के चक्कर से पा जाए। मैं डायलॉग करना, मुकालमा करना, ठीक है? तुसी मेरी कबर से नहीं जाना, मैं तुम्हारी कबर, तुसी जो भी मानते हो तुसी ओदा हिसाब देना है, मैं जो मानना हूं मैं हिसाब दूंगा। ऐसे तरह ही है, इस गल पे यकीन है तुहाडा? अच्छा, आपने, आपके भाई जो थे सैफ साहब बैठे थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जी इस तारा के रंग में जी मिर्जा साहब ने कह दिया, अच्छी बात है, कह दिया। मसला ये है कि मिर्जा साहब का नबी होने का दावा था। जब अल्लाह ताला एक नबी को इल्हाम करता है तो उसके उस इल्हाम के जरिए कोई पैगाम तो पहुंचाना चाहता है ना। अगर मिर्जा साहब को चलो इस तारा के रंग में अगर बेटा कह दिया अल्लाह ताला ने, तो कुछ पैगाम तो देने की कोशिश की होगी ना उन्होंने। जी आरबीडी साहब, माइक इज योर्स। मैंने आज तक नहीं ये पढ़ा है कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह का बेटा कहा हो, ठीक है? ना मुझे किसी ने बताया, किसी उनके मुरब्बी ने, ना किसी मैंने मेरे बाप ने, ठीक है? तो ये आई डोंट नो कि ये कहाँ पे लिखा है। मैं यार अभी आपके सामने यार मिर्जा साहब के इल्हाम, इंता मिन्नी व मंज़लती, इंता, मैं पढ़ा देता हूँ, मिर्जा साहब का दावा है, इंता मिन्नी व मंज़लती वलदी। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पे आया था, वही पैगाम उनका भी था। नहीं, इसमें तो रूहानी का नहीं, मैंने तो आयत आपको बाइबल में से दिए, वहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा है को जिंदा होने के सबब से पाक रूह के हवाला से तू बेटा ठहरा। अल्लाह ताला का मैंने तो आपको बाइबल से हवाला दिया है कि रूहानी तौर पे बकायदा लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और आमीन है। यहाँ पे जो मिर्जा साहब के ऊपर इल्हाम हो रहा है, इंता मिन्नी बमंज़लती वलदी, इसमें जिली बरूजी तरीके से या इस्तारा का रंग कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? किस लफ्ज का आपने इस्तारा का रंग लिया है? शाह साहब ने बड़ी जबरदस्त, में बड़ी देर से आपकी बात सुना था, बड़ा मजा आ रहा था। शाह साहब बड़ी तहम्मुल से और बड़े तफसील से बात करते हैं, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझ जैसे बंदे को समझ आ रही थी कि हाँ जी वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आई। तो ये मुझे बताएं, ये मिर्जा साहब का ये एक छोटा नहीं, बड़ा लंबा चौड़ा इल्हाम है। मिर्जा साहब ने तो पूरी कायनात पर अपने खाते से पाली है, ठीक है? लेकिन उसका जो ये बात जो अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब को इल्हाम के जरिए बताई, इंता मिन्नी बमंज़लती वलदी, इसमें इस्तारा का रंग कौन सा लफ्ज़ है, ये बताएं। और उन्होंने कितनी प्यारी दलील दी कि मंज़लती होता है वो, यानी बराबरी की जाती है ना। तो यही अल्फाज जो है हदीस में जनाब मूसा और जनाब हारून के तवस्सुत से जो है ना वो बयान हुए हैं। बड़ी मुदल्लल और सही हदीस उन्होंने बयान की है कि जनाब मूसा ने जनाब हारून को कहा कि भाई तू मेरे लिए ऐसे ही है, भाइयों की तरह ही है ना। तो मंज़िलती तकाबुल है, वो जो उन्होंने बात की थी मंजिलत वाली जो बात, उनका मुद्दा ये था, बड़ी प्यारी बात की थी शाह साहब ने, यकीन माने। हाँ जी, बड़ा मजा, मैं बड़ी देर से मैंने रिक्वेस्ट डाली थी पर मेरे ख्याल से शायद आपने देखा नहीं, तो मैं बिल्कुल शाह साहब को मुबारकबाद देना चाहता था। बड़ी प्यारे उन्होंने दलील दी थी और इसके बाद को बात ही नहीं बचती कि मंजिलत जो है उसके साथ करार दी जाती है जिसका वजूद पहले से हो। हदीस को सच्चा नहीं कर रहे कि सारे एक तरफ हो जाएंगे और मिर्जा साहब जी बिल्कुल, हाँ जी, लेकिन कबल कर रहे हैं ना। अगर मिर्जा साहब जनाबे मूसा ने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने उनके खिलाफ एतराज कर रहे हैं, तो ये तो सच्ची साबित होगी। नहीं, बाउल्ला ईरानी को जिक्र करें यहाँ पर तो हम उसमें भी साथ शायद हो जाएं, एक दो पॉइंट हमारे भी मुत्तफिक हो जाएं उसके ऊपर, तो अब क्या करेंगे, उनको भी सच्चा मानेंगे। रसूलुल्लाह की हदीस सच्ची साबित होगी कि क्रिश्चियन भी एक तरफ हो जाएंगे, यहूदी भी एक तरफ हो जाएंगे, और ये जो 2 नंबर ओ यार मिर्जा साहब आए काय के लिए थे, मुझे सिर्फ ये बता दें आरबीडी साहब, मिर्जा साहब काय के लिए थे? क्रिश्चियन भी गलत थे, हिंदू भी गलत थे, मुसलमान भी सारे गलत थे, सिख भी गलत थे,
मिर्जा साहब ने तो किसी को नहीं छोड़ा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मिर्जा साहब के ऊपर ये जो इल्हाम हुआ था इंता मिन्नी बमंज़लती वलदी, इससे अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को मिर्जा साहब के तवस्सुत से क्या पैगाम देने की कोशिश की है? जी, जो तो मकसद होता है ना इल्हाम का। सेम पैगाम जो ईसा को रूहानी बेटा बना के आपने दिया था ना, वो सेम पैगाम। ये दावा किया कि जैसे जी ईसा को रूहानी बेटा बनाया है इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे बना लिया है ईसा को उठा के, ये कहा कहीं पे कहा है जनाब साहब ने? क्या एतराज है? जल्दी से जल्दी। नहीं प्रॉब्लम क्या यार, इल्हाम है, आप उनको नबी भी मानते हैं, उनके इल्हामात को भी मानते हैं, पर इल्हामों की एक नहीं मानते यार, ये कौन सा तरीका है? आप मिर्जा साहब पे सोच समझ के देखिए ना। चले आरबीडी साहब, आप मिर्जा साहब पे सोच समझ कर ईमान लाए हैं या सिर्फ आप इसलिए मिर्जा साहब को मानते हैं क्योंकि आप एक अहमदी घराने में पैदा हुए हैं, या कोई तहकीक वगैरह भी की है मिर्जा साहब ने? मैं मुझे तो बहुत सारी चीजों पे इतराज इस्लाम पे भी है, ये चीजें नहीं है इस्लाम होनी चाहिए, पर है तो अहमदी ना आप। में बुरी लगती हैं भाई है तो आप अभी तक अहमदी ना। अगर आपको इस्लाम पे भी इतराज है तो फिर इसका मतलब आप मुसलमान भी नहीं। आपको अहमदियत पे भी इतराज है तो फिर हाँ जी। साहबा लोंडियां रखते थे, रसूलुल्लाह जो थे वो मारिया कितबिया के साथ सेक्स करते थे, बच्चा बनाया था। मुझे तो उसमें ना 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 ना, ये जहालत नहीं, ये जहालत नहीं। हाँ नहीं जहालत नहीं, आरबीडी साहब नहीं। जो पूछ रहा उसका जवाब देना है। हाँ पैगंबर इस्लाम का मेरे से कोई बात, मैंने तो आपको बोल दिया साफ कि मैं मुसलमान हूं ही नहीं। तो पैगंबर इस्लाम ये करते थे वो करते थे, मेरा उससे क्या वास्ता है? मैंने जो आपसे सवाल पूछा है अपनी मालूमात में इजाफे के लिए, उसका जवाब देके तो शुक्रिया का मौका दे प्यारे भाई, क्या मसला है इसमें? आपसे बात करता होल्ड करे, मैं जरा मेहमान आया, मैं बात कर लूं। साकी भाई मौजूद हो? साकी जी जी मौजूद हूं मैं। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। मैं जुमा पढ़ के आता हूँ, या कहते हो तो मैं बंद कर देता हूँ, या फिर मैं जुमा पढ़ के आता हूँ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ कैसे भाई ਤੁਸੀਂ पढ़ो जुमा। अनिल भाई की हाल चाल है? अनिल भाई की हाल है? ठीक हो? मालिक दा तुसी सुना सर। ठीक ठाक, अल्लाह दा करम। अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ। अच्छा हो जाहिद भाई तुसी ठीक हो? बड़े दिनों बाद ਤੁਹਾਡਾ मैं दीदार। ठीक हाँ बिल्कुल। चलो चलो बारी तारा अपने जुमान च मैं तो ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। जी जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਮਸਰੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬਿਸ਼ਪ ਭਾਈ ਆਮਰ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਟੈਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟਿੰਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਵਾਲ ਨਾ ਆਉਣ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਨੀਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਲਤੀਫ ਮੀਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਤੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। 600 ਯੂਰੋ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। सुन चुको हो? जी 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 इसी तरह ही है। ਅਨੀਲ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ चुको ते जरा भी है नीचे। WhatsApp ਤੇ ਅਨੀਲ ਭਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ। चुको से ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਜੇ? कोई कादियानी होवे चुको नु। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ? मैं कादियानी थी ऊपर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਵਾਕਿਫ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। आओ खुली जे बरोड साडी आ जाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਖੁੱਲਾ। ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈਡੀ ਕੋ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈਜਾਨ हेलो। हाँ जी कैसे हो भाई साहब?
जी हम ठीक हैं, आप कैसे हो? बस बढ़िया है भाई, बढ़िया है। हाँ जी भैया, मैंने ना बात करनी है। आप बिशप भाई शायद ये क्रिश्चियन है, तो क्या मैं बात कर सकता हूँ इनके साथ? जी 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 करें। हाँ जी। उनसे बात कर लीजिए, कर ले, लेकिन पहले आप बता दें कि आप कौन है। मैं पंजाब से हूँ और मैं हिंदू हूँ, हिंदू बिलीव है मेरा। जी जी जी। अच्छा हिंदू है। जी भाई। कौन से हिंदू हैं आप? हाँ जी, कौन से हिंदू हैं प्यारे भाई? ब्राह्मण। हाँ जी ब्राह्मण हूँ मैं। ठीक हो गया जी, करे जी। जी भाई, तो मैंने आपसे पूछना था कि जो जीसस हैं वो परमेश्वर है कि या परमेश्वर के पुत्र है? जी परमेश्वर हैं। तो बाइबल में तो बहुत सारी जगह लिखा हुआ है ना कि हाँ भी ये परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे को परमेश्वर नहीं ये कहाँ पे लिखा हुआ? ये हवाला दे रहा, ये बस हवाला दे रहा कि यीशु मसीह ने कहाँ पे कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? हवाला तो भाई मैं दे दूंगा आपको, तो फायदा लेकिन क्या? मैं आपको नहीं बोल- हवाला नहीं, दे के नहीं, बात नहीं। करेंगे तो उसका वजन होता है ना प्यारे भाई। जब आपने पढ़ा कुछ नहीं है, लोगों के मुंह से सुना के, तो इस तरह से तो नहीं ना होता यार। नहीं तो ये कहा, ये तो जैसे लिखा हुआ है ना कि जैसे परमेश्वर मरज़इयों ने मुझे भेजा, जैसे परमेश्वर ने मरज़इयों मुझे भेजा, गुजारिश तो वो ये है। परमेश्वर हाँ तो परमेश्वर ने भेजा। भेजना और परमेश्वर का बेटा होना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। परमेश्वर ने सिर्फ यीशु मसीह को थोड़ी भेजा, परमेश्वर ने तो सारे के सारे, हमारे यहाँ पे तो तकरीबन 40 के करीब अंबिया का जो ना जिक्र बाइबल में मिलता है। मैं हवालों के साथ आपको बता देता हूँ, सब ने दावा किया कि हमें परमेश्वर ने भेजा। ओके, तो जो परमेश्वर को जब जीसस को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने सारे जो पाप थे वो खत्म कर दिए। वो कौन हाँ से जी। पाप हैं जो खत्म हो गए थे तब और आज? बहुत वो अच्छा पाप सवाल नहीं है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा जूइश बैकग्राउंड को जानते हैं ना, तो जो जूइश की जो किताब दी थी परवरदिगार ने, वो थी तोरा। ठीक है, तोरा के अंदर उनके ना अहकामात मौजूद हैं। ठीक है, उसमें ना कुछ तमाम के तमाम गुनाहों की कुर्बानी नहीं थी, तमाम के तमाम जो पाप हैं उनकी कुर्बानी नहीं थी, कुछ पापों की कुर्बानी थी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपसे कत्ल हो जाता है तो मौत का बदला मौत है। ठीक है, इंसाफ का तकाजा ये है। ठीक है, फिर जैसे जना की कोई कुर्बानी नहीं रखी। अगर आप जना करते हैं तो ये तो नहीं हुआ कि अगर आप मालदार है तो जी औरतों के साथ जना करते हैं तो बकरा कुर्बान कर दिया तो लो जी आपका जना खत्म हो गया ना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे थे कि गुनाह ऐसे थे जिनकी कुर्बानी नहीं थी। तो जनाब मसीह की कुर्बानी जो कंसेप्ट है ना, ये यहूदियत में भी पाया जाता है। मैं खुद भी मसीहानिक हूँ। ठीक है, ये बहुत सारे जो गुनाह जिनकी कुर्बानी हुई, तो खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बानी के वसीला से हम उन गुनाहों की भी माफ़ी खुदा से तलब कर सकते हैं। वो माफ़ करना ना करना वो बारी ताला का काम है, ये कंसेप्ट है जी। क्योंकि अभी इस दुनिया में तो इतना कुछ हो रहा है। एक उनमें से सुन ले जरा पहले भाई, सवाल का मेरा अभी जवाब खत्म तो नहीं हुआ। फिर उसमें से एक जो गुनाह ऐसा था जो खुदा की शान में हकारत की जाती थी। अच्छा, अब उसका प्रॉब्लम क्या था? अगर आप मलाकी अहदे कदीम की आखिरी किताब पढ़ेंगे ना, पहले बाप की 6ठी 7वीं आयत जो है, वहाँ पे बारी ताला फरमाते हैं, ठीक है, कि बेटा अपने बाप की, नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। तो अगर मैं बाप हूँ तो मेरी ताज़ीम कहाँ है, और अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम जो हो मेरे सामने लूले लंगड़े अंधे काने बहरे जो है वो बकरे ला के कुर्बान करते हो। खुदा के को अगर कोई नापाक, क्योंकि एक भी नुक्स अगर निकल आए, जैसे कि दीन इस्लाम में भी ये पाया जाता है कि जब आप ईद उल अज़हा पे बकरा कुर्बान करते हैं तो उसको किसी भी किस्म की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुसलमान भाई यहाँ पे बैठे हैं, वो इस बात की तस्दीक कर देंगे। यही कंसेप्ट जो है यहूदियत में भी है। तो अगर हो जाता था, आप अगर पढ़ेंगे, ये तो मसला ना कि आप तोरा नहीं पढ़ते, तो होता ये था कि अगर खुदा ना खास्ता एक जानवर जब अल्लाह के लिए मखसूस कर दिया गया है, अगर उसमें कोई नुक्स निकल आए, ठीक है, तो उसका फिर रिप्लेसमेंट बर्रा जो है वो दिया जाता था। तब कुर्बानी जो कुर्बानी के लिए जानवर लाया गया होता था, और जो बंदा कुर्बानी लेके आया होता था, फिर उसका छुटकारा होता था। ठीक है, तो इसको रूहानी मानों में जो है ना, उसको फुलफिल किया गया था कि जितनी भी ट्रांसग्रेशंस जो की थी, जितनी भी खुदा की शान में जो हकारत होती थी इंसान से, तो उसके लिए हम कहते हैं कि
जनाब मसीह जो है उनकी कुर्बानी जो है वो एक रिप्लेसमेंट लैम्ब के तौर पर है, ये तमसीली तौर पर जो है वो माना जाता है। ये नहीं कि हम उनको जो है ना वाकई में कोई लैम्ब मानते हैं, नहीं, लैम्ब ऑफ गॉड वर्ड आया है बाइबल के अंदर ना, तो ये कंसेप्ट है इसका जो है ना स्पिरिचुअलिटी के साथ कंसेप्ट है, यानी रूहानी तौर पर हम जो है ना ये चीजें मानते हैं। जी प्यारे भाई करी बात आप। तो जो इतना कुछ हो रहा है अभी दुनिया में, लड़की छोटी छोटी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, तो वो कब आएंगे जीसस की जो उनको बचाने के लिए कि इतना कुछ ना हो। और कब तक हम वेट करते रहे कि लड़ाइयाँ पे लड़ाइयाँ होते जा रही हैं। जी जी अच्छा, इसका भी जवाब जो है ना बाइबल के अंदर मौजूद है, 1 पीटर 3:4, ठीक है। इसका देखें ना 2000 साल पहले ये आप आपने अब आके सोचना शुरू किया, यही तो मिर्जा साहब का भी तो यही दावा था कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी नस्लें मर जाएगी, पर मसीह को आते हुए देखेंगे। और ये पहले से पेशन गोई हो चुकी है बाइबल में। पहला पतरस उसके 3 की 4 पढ़ेंगे ना कि लोग तंग आ जाएंगे कि उसके आने का वादा कहाँ रहा। देखिए हर एक चीज का एक टाइम होता है, ठीक है, हर एक चीज का टाइम है। जैसे कि पुराने अहदनामा की वास की किताब 3 बाब पहले दूसरी तीसरी आयत पढ़े, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हर एक चीज का वक्त है, जीने का, मरने का, हंसने का, रोने का। बहुत सारे आपको लोग अस्पतालों में मिलेंगे जिनकी बुरी हालत है बेचारे की, उनको देख के मैं खुद जाती तौर पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैंने देखे भी हैं, देखता आया भी हूँ कि उनको देख के यही दुआ निकलती थी दिल से, ये कि या खुदाया या तो इनको ठीक कर दे या फिर इनको उठा दे, ठीक है। तो हर एक चीज हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन खुदा का अपना एक टाइम है। हम चाहते हैं कि खुदा हर एक चीज जो है वो हमारे टाइम के मुताबिक करे, ऐसा नहीं होता। खुदा ने अपना एक टाइम मुकर्रर किया है, लेकिन खुदा अपने वादों का सच्चा वो है तो जब उसने नहीं वो तो सही है ना कि हाँ भी जब आप कहते हो कि हर किसी का टाइम है, तो जब जीसस क्रूज पे चढ़ रहे थे, उनको चढ़ा रहे थे दुनियावी तौर पे, मैं आपको वेट भैया वेट, तो फिर वो भी उनको वो रोए थे, वहां पे चिल्लाए थे कि हाँ भी हे गॉड व्हाई आर यू फॉरसेकन मी, मुझे क्यों भूल गए आप, मुझे मेरा सहारा क्यों छोड़ दिया। तो फिर वो तो उसको भी नहीं बचा पाए ना। ये तो मनगढ़ंत कहानी है कि वो तीसरे दिन उठ खड़े हुए। भाई अगर इतनी पावर थी, इतना कुछ था, तो भाई वो पहले क्यों क्रूज पे चढ़े ही नहीं देखे ना पहले दिन भी जाते भाई। प्यारे भाई आपने चूंकि स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा, आपको इन बातों का नहीं पता। ऐसे तीसरे दिन ये आप नहीं तीसरे दिन बोलते हैं, सारे बोलते हैं तीसरे दिन उठ खड़े हुए। वो अगर इतनी पावर थी, वो खुद गॉड नहीं बोलते, मैंने ये तो बोला क्रूज पे चढ़ने से पहले ही क्यों नहीं सब कुछ उन्होंने सही कर दिया। जब वो जेनेसिस 38 में तमार वाला सारा कुछ है, तमार के साथ उसके ससुर ने कुछ किया, तो जीसस वहां पे खड़े होके क्या कर रहे थे ना? क्या तमार वाला क्या मसला था? तमार के ससुर ने उसके साथ किया था। हाँ जी, क्या किया था? उनके साथ संभोग किया था उसने, उसके ससुर ने, तो बाद में बच्चा पैदा हुआ था। हाँ तो क्या वो नबी थे? नहीं नबी नहीं थे, तो जीसस तो वहीं पे थे ना, जीसस तो वहीं पे थे। तो कहाँ पे थे जीसस? वहाँ पे तो वहाँ पे थे, आप देखो ना जेनेसिस कहाँ पे थे जीसस? जहाँ पे अब सारी दुनिया है। तो अगर इतना कुछ उस टाइम पे आप बोल रहे हो कि बाइबल पता नहीं कब से लिखी हुई है, वहाँ पे जीसस कहाँ पे थे? वहाँ पे नहीं, वहाँ पे जीसस कहाँ पे है? वहाँ पे जीसस पे कहाँ का जिक्र है? वहाँ पे तो जीसस का जिक्र वहाँ पे तो है ना। हवाला भी आपके पास नहीं है? मैं बताता हूँ बताता हूँ भैया। जेनेसिस 29 का और 19 का 29 है, वहाँ पे लिखा हुआ कि वादी के सभी शहरों को तबाह कर दो। वो परमेश्वर बोल रहे हैं, वो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वो लिखा हुआ है। 38 से भाग के 19 में चले गए। नहीं, आप वो जनाबे लूत का एक अलग वकुआ है, वो जनाबे लूत का बात करें। 19 की जो बात करें वो जनाबे लूत का वकुआ है। और जनाबे लूत बाइबल के मुताबिक जो है वो नबी नहीं है। नबी बाइबल के मुताबिक वो नबी नहीं है, कुरान के मुताबिक वो नबी हो सकते हैं, पर बाइबल में उनको नबी नहीं कहा गया। हाँ, जनाबे बाप इब्राहिम के वो रिश्तेदार थे, उनके भतीजे भी थे, ठीक है। उनके भतीजे जो है बाइबल से पता चलता है कि वो उनके भतीजे थे। उनको नबी नहीं कहा गया। अगर बाइबल में उनको कहीं पे नबी तो कहा गया तो परमेश्वर लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने बोला कि सभी वादियों के सभी लोगों को तबाह कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि वो क्या करते थे? बदफेली करते थे। तो परमेश्वर जब वो उसके नबी थे तो फिर वो बचा सकते थे ना।
नहीं नबी कहाँ पे लिखा है? नबी कहाँ पे लिखा? तो बताएं कौन किसी थे को, फिर? पूछ वो रहा हूं। कौन थे? परमेश्वर किसको बोला यार गया फिर वो? एक वकूआ बयान हुआ है, वहां पे नबी तो नहीं लिखा। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं लिखा हुआ है नबी? तो परमेश्वर किसको लिखा हुआ है? हाँ तो परमेश्वर ने तबाह किया था ना। परमेश्वर तो खुदा को कहा गया कि खुदा ने जो है वो कौम लूत को तबाह किया है। तो वादियों वो जो कबीला था वो सभी को तबाह किया है ना। हाँ जी, क्योंकि सारे का सारा जो गुनाह, तो परमेश्वर जो कर गुनाह सकता है ऐसे, जो उसने खुद कर सारी सकता है, दुनिया बिल्कुल। बनाई वो कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अपने हिसाब से करेगा ना। वो हमसे पूछ के हमें एप्लीकेशन तो नहीं देनी पड़ेगी कि हाँ जी आजा खुदा ना के तया काम कर दे। नहीं, वो अपनी मर्जी से करेगा, अपनी मर्जी का मालिक है। हम उसकी मर्जी के मोहताज हैं, वो हमारी मर्जी का मोहताज नहीं है। सीधी सी बात है प्यारे मतलब भाई। कि वो परमेश्वर अभी देख रहा है कि जो दुनिया में चल रहा है वो होने दो, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। राइट? मैं आपको एग्जांपल देना था, ठीक है। मैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि आप इंडिया में या इंडिया से बाहर हैं। बहरहाल मैं बरतानिया में रहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो छोटी सी चोरी चिकारी होती है ना, इसके लिए पुलिस वाले जो है ना वो बिल्कुल सीरियस नहीं रहते जब तक कि वही बंदा कोई सीरियस क्राइम ना करे। वो कहेगा यार इसको हम लेके जाएंगे, 1-2 दिन के बाद फिर छूट जाएगा, लेके जाएंगे 1-2 दिन के बाद फिर छूट जाएगा। वो उस वक्त तक वेट करते हैं जब तक वो बड़ा कांड ना करे, ताकि उसको लंबा पे खींचे। तो मैं समझता हूँ खुदा का, मैं अपनी जात, आप मेरी बात वेट से कर रहे हैं डिसएग्री। कि हाँ भी ये बड़ा कांड करे, सब हाँ पकड़े। जी, राइट? बड़े कांड हो रहे हैं ना, शुरू हो गए ना हाँ, पहले। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जो आपने एग्जांपल दिया ना कि हाँ भी बरतानिया में हूँ मैं, तो यहाँ पे हाँ। पुलिस जो है वो सारी क्रिश्चियनिटी वाले ये लोग हैं। वो हाँ वेट जी। करते हैं कि वेट करो, मरने दो हाँ। लोगों को, लोग बड़ी बड़ी गलतियां करें, उसके बाद पता चले भी हाँ भी अभी गलती हो गई बड़ी, अब पकड़ो। पकड़ते पकड़ते कुछ नहीं है वो। यहाँ मैं कनाडा से हूँ भाई, यहाँ पे भी यही रूल है। यही हाँ जी। जो गोरों की कम्युनिटी है ना, ठीक हो गया। इनके भी ठीक हो माँ गया। बाप जो हैं, बड़े लोग हैं, वो अपने अच्छा। बच्चों की टेक केयर इसीलिए नहीं करते क्योंकि हर किसी को अपनी मर्जी तक है, अपने मतलब तक है। मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है। बीवी किसी और के साथ तो आप ऐसे घूमती फिर रही है, क्या कर रहे हैं? तो मैं तो फिर वो लोग तो आप फिर वही ऐसे- तो बात है। वो बाइबल आप में ऐसे- लिखा हुआ है ना, आप ये ऐसे- बाइबल में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई क्या अपने लिखा हुआ है? तक रहो, मैं पूछ रहा हूँ, हवाला दे, हवाला अपने बाइबल में से तक दे अपने नहीं तक रहो। नहीं दे क्यों नहीं रहा? मैंने आपको बोला भी परमेश्वर बोला, आपने बोला भी परमेश्वर ने सभी का ठेका थोड़ी लेके रखा हुआ है। वो अपनी मर्जी नहीं, करेगा, ठेका- क्यों ठेका- मर्जी करेगा वो? ठेका तो लिया ही परमेश्वर ने हिसाब करना है ना सबका। तो फिर इसीलिए पर परमेश्वर ने जीसस को नहीं बिठाया था ना, वो क्रूज पे चढ़ गए थे, उन्होंने चढ़ा दिया था। नहीं, तो उसके पीछे मकसद था। अरे कौन सा मकसद है भाई? मैं कौन सा बताता हूँ मकसद जीने है? के बाद। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखते हैं? नहीं नहीं रखते? नहीं रखता। तो कल की इफ्तार मर गया में तो क्या मैं मर करने गया। आएंगे? नहीं, कल की इफ्तार जो है वो क्या करने आएंगे? मैं नहीं है ना? मानता भाई, मैं नहीं मानता हाँ, वो तो फिर होगा। हिंदू का है, फिर भी हिंदी भी कोई नहीं पाई। ये तो हिंदू भी मानते हैं, कल अरे की इफ्तार में क्या भाई करना है? तो अरे मैं हिंदू रिलीजन में, मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन मैं ये पखंडवाद नहीं मानता ऐसा कुछ भी होगा। नहीं पखंडवाद का मैं मरने आप से इसे पखंड- मैं आप पखंडवाद जन्म कैसे से कर सकते हैं? मैं जन्म से पहले भी मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया, और मरने के बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे जाऊंगा। ठीक है ना? मैं तो रियल लाइफ में जी रहा हूँ। मैं प्यारे वो भाई- पखंडवाद नहीं करता भी जीसस को ऐसे किया जी, प्यारे ऐसे भाई किया, अगर आप कुछ नहीं किया भाई। मानते, अगर आप नहीं मानते ना, भाई। तो प्यारे भाई आपको राइट है, ठीक है। अब हम आपकी कंटेपेटी भी तो बंदूक रख के तो नहीं ना बनवा सकते। आपके लिए भी मेरे पास मनवा एक ही तो जुमला है। मनवा आपके तो पास नहीं मेरे- सकते, लेकिन बात ये है ना, ये पखंडवाद आप दूर करो नहीं, ना। आप पखंडवाद बाइबल में साबित ये भी तो करें ना, इसको पखंडवाद आप कैसे कह सकते तो हैं? गोरे तो हमारे पंजाब में तो ये पखंडवाद चलता है भी हाथ रखो, ये बाहर वाली कंट्री वाले क्यों नहीं करते? ये क्या पखंडवाद क्या है इसमें बताएं तो सही ना। कि हाथ रखो, हालेलुया, हाथ रखो, फायर करते हैं, वो क्या हो रहा है हमारे पंजाब हाँ में? जी, हाँ जी। नहीं मैं वो वाला नहीं हूँ भाई। नहीं मैं आप वो नहीं हो, लेकिन आप मेरे को बोल रहे हो ना भी कल की अवतार आएगा। जब आप नहीं मानते तो नहीं मैं आप नहीं क्यों मानते। मानूं उसको? हाँ हैं? अच्छा मैं क्यों मानूं देखिए, फिर कल की अवतार को भाई? गुरु नानक जो है वो 15वीं सदी उनके मसले में पढ़ना ही नहीं है भाई, मेरे को यार, मतलब देखिए, नहीं है। मेरे को मैं अगर हूँ, आप किसी मैं को- हिंदू हूँ, मैं किसी को और को नहीं मानता, मैं ह्यूमन को मानता हूँ, ह्यूमैनिटी को। कहाँ पे लिखा है? चलो इसका हवाला, चलो हिंदुइज्म से हवाला दे दें कि जी ह्यूमैनिटी के बारे में क्या कहता है। अरे भाई मैंने आपको बोला कि मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी को मानता हूँ। वहाँ पे कहाँ हिंदू पे- ग्रंथों में नहीं लिखा कहाँ से हुआ, लिखा? आप- मैंने ठेका कहाँ पे- थोड़ी लेके रखा आपने हुआ है, humanity- मैंने ठेका नहीं आप- लेके रखा हुआ, आपने मैंने humanity ठेका कहाँ नहीं से लेके लिया? रखा हुआ।
मेरे माँ बाप मानते हैं, शिवलिंग को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं। मैंने ठेका थोड़ी लेके रखा हुआ है, छोड़ ठीक दिया है। मैंने। इतना गंद गंद लिखा हुआ है, अब मानो तो सही ना। इंसानियत कहाँ से कि लेते हैं आप? परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है भाई? परमेश्वर का पुत्र, वो पुत्र वेट कर रहा है कि हाँ भी मेरा बाप आए और मुझे बचा ले, और यहूदियों ने चढ़ा दिया उसको क्रूज पे भाई। इंसानियत प्यारे भाई, आप इंसानियत कहाँ से लेते हैं? कोई तो अरे ऐसा भाई आपके पास इंसानियत आप डॉक्यूमेंट देखो ना। होगा। अरे भाई जी, जी। इंसानियत हमारा रियल लाइफ में जियो ना, हाँ, रियल क्या लाइफ में है? जियो आप, कहाँ से रियल लाइफ में जियो। कहाँ से लेते हैं आप? कहाँ अगर से आप लेते हैं? आपके सामने नहीं, आपके सामने अगर कोई कत्ल हो रहा है, क्या आप उस कत्ल के लिए आप उसको बचाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी, कोशिश कर सकता हूँ, बचा तो नहीं हाँ, सकता तो उसको। ये होती है ह्यूमैनिटी की। अगर मेरे सामने कुछ हो ना तो मैं ये कहाँ से बचाऊंगा। लिया आपने? ये वाली ह्यूमैनिटी कहाँ से लिया आपने? अरे यार मैं रियल लाइफ में जी रहा हूँ, मेरे नहीं मेरे तो अंदर भाई, दिल है, कोई मेरे उसका- अंदर नहीं, दिल है, नहीं, कहाँ से लिया मेरे अंदर आपने? दिल है, मेरे अंदर दिल है। मेरे हाँ। सामने कोई चीज होती है, मेरे को फील होती है, महसूस ये होती कहाँ है से भाई लिए? वो। कोई कहीं मेरे होगा, को महसूस डॉक्यूमेंटेड होती तो है। होगा ना। अरे डॉक्यूमेंटेशन तो फिर ये तो हाँ। कोई यही तो बात है। आप सभी लोगों को कहते हो बाइबल पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। अरे क्यों बाइबल पढ़ना है हाँ जी। भाई? जो बाइबल में लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इतना कुछ गंद लिखा हुआ है। एक क्या लिखा बाप हुआ है? अपनी बेटी के नहीं, साथ, अरे भाई क्या तो लिखा पढ़ लो हुआ ना, आप पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। आप नहीं, तो आप पढ़ के बता- बता दो, आप हिंदी चलो। में बता दो उसका, पढ़ के मुझे सब कुछ हवाला दे, हिंदी में क्या लिखा हवाला हुआ दे दे, मैं पढ़ देता हूँ, हवाला दे दे मुझे। है। यार आपके पास बाइबल है ना, तो आप पढ़ो हिंदी में, हिंदी में बता दो, उर्दू में भी हाँ भी क्या लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ सोलोमन का। क्या एक बाप अपनी बेटी के सामने पढ़ सकता है वो? क्यों नहीं पढ़ सकता भाई? क्या मसला है उसमें? तो पढ़ के बताओ फिर आप। अब बता दो, अभी कहाँ जब सॉन्ग ऑफ 6-7 बंदे सोलोमन का बैठे कौन हुए सा हैं। चैप्टर है, कौन सी आयत है? आप आपने जिंदगी में शुरू कभी से- बाइबल में नहीं खोल के देखी कौन सी इंक से लिखी हुई है? और यहाँ पे अरे आके आपने शुरू से कर बाइबल में दो ये आप, लिखा है। आप शुरू से कर दो, शुरू हाँ, से। तो उसके तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 बाब हैं। सॉन्ग ऑफ उसको सोलोमन पढ़ने शुरू के कर लिए दो। कम। हाँ जी, बताए ना, मुझे हवाला तो देना जो उसमें आपको इतराज है। सॉन्ग ऑफ ओके भाई, सोलोमन एक मिनट ऐसे रखना, मेरे को डिस्कनेक्ट मत करना। मैं अभी आपको बताता हूँ भी कौन सी आयत ठीक है। कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ ठीक जी, है, वेट करना। अच्छा ठीक है, बताएं। अच्छा, ये प्रॉपर हिंदू नहीं है, यानी कि कृष्णा अवतार वगैरह इनको नहीं मानते ये? नहीं नहीं, हिंदू भी नहीं है भाई। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिकली मरज़ई हैं, और ये हिंदू बन के आए हुए हैं। हाँ, कहते ना, खंजर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। जी भाई, सोलोमन ऑफ सॉन्ग जो है ना बाइबल में, तो वो पहला जो पहला है, पहले वाले से पढ़ना शुरू करो आप। तो उसकी तीसरी लाइन में जो अच्छा। लिखा हुआ है, आप पहले दो पढ़ पढ़ दें, लो, उसके आपने बाद आपने पढ़ेंगे। निकाल लिया ना, आपने निकाला है ना, लाइन निकाली, पढ़ दें वो लाइन, हिंदी में पढ़ दें आप, क्या मसला सुना। किताब के नाम से पता चल रहा है कि सॉन्ग है, शायरी है। शायरी इस्तारा में होती है, इस्तारा के रंग में होती है, तमसीली कलाम होता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये बाहर निकालो ना वहां से, फिर बाइबल से। क्या क्या निकालें? आप परमेश्वर की बातें करो ना उसमें। आप यार ये आप नहीं मानते ना, आप इंसानियत को मानते, तो बाइबल में क्या रखें, क्या निकालें, इसका आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्यारे भाई। आप अपना बताएं, आपने इंसानियत कहाँ से ली है? आपने इंसानियत कहाँ से ली है? कौन सी किताब से उठाई है? बताएं तो सही ने मुझे, उस किताब का नाम बताएं, उस किताब पे बात कर लेते हैं। नहीं, मैं तो किसी कहीं से नहीं ली। मैंने जैसे एक रियल लाइफ में जी रहा हूँ, मेरे सामने जो होता है मुझे फील होता है। नहीं, feel रियल होता है, लाइफ वो हम का, समझते ये हैं। चले रियल लाइफ के बारे में तो किसी ना किसी किताब में लिखा होगा ना। बाइबल से अगर आपको तकलीफ है, कोर्ट भी आप बाइबल नहीं, कर रहे जरूरी हैं तो छोड़ थोड़ी दें। है, जरूरी है नहीं, ये नहीं, जरूरी आपने लिखा हुआ है रियल- कहीं पे भी। हाँ भी अरे भाई, पढ़ने से सब आपने कुछ रियल पता लाइफ चलता कहाँ है। से ली है? आप जो रियल लाइफ बता रहे हैं, रियल लाइफ की तारीफ करें, हमें तारुफ करें, हम भी रियल लाइफ में चले जाते हैं आपके साथ, क्या मसला है? तो नहीं, तो आज से 50-100-200 साल पहले जो नहीं पढ़ते थे, जिनको पढ़ना हाँ, नहीं हाँ। आता था, हाँ, अगर हाँ। उन्होंने किसी ने किताब नहीं पढ़ी तो क्या सुनते थे, वो सुनते थे। जिंदगी में, अच्छा वो सुनते थे। तो मैं भी सुनता, हैं? मैंने सुना, सिखों मैंने में भी देखा, कीर्तन क्यों? मैंने मुझे बताएं, जो सिखों में कीर्तन किया जाता है, उसका मकसद क्या होता है? क्या करने की कोशिश करते हैं? गुरबानी जो है उसको गा के सुनाते हैं। गुरबानी गा के सुनाते हैं। उसके पीछे मकसद ही ये होता है कि जिस बातों का इंसान पढ़ लिख नहीं सकता, वो सुनकर उसको पर ईमान ले।
इस्लाम में भी आप देखें हमद गाई जाती है, नातें गाई जाती हैं, क्या मकसद होता है इसका? मतलब ये है कि जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कुरान लिखना पढ़ना नहीं जानते, वो इन अल्फाजों से इस्तेफादा करें, खुदा की शान, नबी की शान के बारे में जानें। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी गीत और ज़बूर जो है वो चर्चों में गाए जाते हैं। ठीक है, उसका क्या मकसद होता है कि जो खुदा की जो कलाम की बातें हैं उससे लोग इस्तेफादा करें। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसके बहुत सारे तरीके बारी ताला ने अकल दी है ना इंसान को। ठीक है, अवोदा किया जाता है, यहूदियों में भी अवोदा किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि वो अपनी इबादत गांव में सिनागॉग के अंदर जो है ना उसका वो भी कीर्तन, आप लोगों ने कीर्तन वहीं से तो उठाया है सारा। ये तो हर मजहब में पाया जाता है कि अपने दीन की तालीमात जो है म्यूजिक के जरिए या किरत के जरिए जो है वो अपने लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि, और उसका मकसद यही है, मैं अपनी नाकस अकल से यही समझता हूँ कि जिनको बेचारों को पढ़ना लिखना नहीं आता वो उससे इस्तेफादा करें। क्या रोल है इसमें? तो आप कहते हो कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन आप पढ़ सकते हैं, राइट, अपने हाँ जी, बच्ची के क्या सामने? मतलब शायरी है ना, शायरी है, जो लिखा है उसका वो मतलब नहीं है। शायरी होती ही इस्तारे के रंग में, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। अच्छा, उसका मीनिंग नहीं होता कोई भी? नहीं, क्या मीनिंग है उसमें बताएं, आप बता दें मुझे, अगर तो गलत आप समझ पढ़ आया के आप बता समझा दो दें ना मुझे। यहाँ भी। नहीं, आपको नहीं, वो आपने जब पढ़ा नहीं उसके है बॉडी उसको के सोचने के ये क्यों लिखा गया है, किस वजह से लिखा गया, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है। एक शोहर अपनी बीवी की तारीफ करो, मोहब्बत, मियाँ बीवी के आपस की मोहब्बत की बात हो रही है, इसमें बताएं आपको क्या तकलीफ है? तो अगर जो कोई लड़की नहीं, अभी मियाँ बीवी, एक शोहर जो अपनी लड़की बीवी की अभी तारीफ शादी कर नहीं रहा है। हुई, अच्छा, तो वो पढ़ेगे तो वो ये तो लिखा क्या हुआ मसला है, है? ये तो नहीं तो तो क्या मसला, नहीं क्यों ने मसला है? लिखवाया है, ये नहीं जीसस ने लिखवाया है। नहीं, आपको किसने कहा जीसस ने लिखवाया है? सॉन्ग ऑफ सुलेमान है, जनाब सुलेमान का गीत है, इसको सुलेमान का गीत कहा जाता है। और ये तशबीही कलाम है। उसमें जो शोहर है वो किसको, वो बनी इसराइल को कहा गया है। उसकी बीवी जो है वो उसकी जो है वो जो गलत काम करते थे, जो बनी इसराइल जो है वो गुनाह करते थे, उसके बारे में वो तस्करा कर रहे हैं। जब आपको नहीं समझ एक बात की तो देख तो नहीं, जिनकी किताब है उनके कम से कम बुजुर्गों को पढ़ने के वो इसके बारे में कि उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया भाई, तो तो इसमें भाई आपका कसूर है जो या किताब का बाइबल कसूर अगर है? अच्छा, नहीं, तो बाइबल अगर पवित्र ग्रंथ है तो बाइबल में ऐसे चीजें निकालो ना बाहर भी, हाँ, ताकि जिसका कोई कोई अच्छा, बंदा हस्बैंड वाइफ की बातें नहीं तो लिखी हुई है पवित्र, वो बाहर निकालो। आप मुझे बता दें आपके पवित्र ग्रंथ में फिर क्या लिखा हुआ है? चले, भगवान कृष्ण नहीं की कितनी बीवियां थी? भाई, हमारे भी शिव पुराण में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ओ हम नहीं मोहतरम, मानते मुझे भाई। बता दिए कृष्ण भगवान की बीवियां कितनी थी? 18,000 कितनी? बता दे जरा प्लीज। 18 साल से भी ज्यादा थी, हाँ जी, 18 साल से भी ज्यादा थी वो। ना जी, 18,100 कितनी? ये होता है, अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़े हुए, लोगों के ग्रंथ भी नहीं पढ़े, तरास मुंह चौक के आ जाते हो। इंसानियत कहां से ली है ओदा भी थानू नहीं पता। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, वो जो 18,109 बीवियां जो थी कृष्ण भगवान की, उनको वो जंग पे लेके जाते थे, उनके साथ वो कीर्तन करते थे, कबड्डी खेलते थे, लूडो खेलते थे, क्या करते थे बताएं जरा? वो भी मैं बता दूं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करते थे? नहीं भाई, मैं तो मानता नहीं उनको। नहीं मैं तो मानता हूं, ये बस बस अगर छुट गई क्योंकि जान, इतना गंद लिखा हुआ है तो जान मैं छुट नहीं गई मानता ਤੁਹਾਡੀ, भाई जान छुट उनको। गई है। तो आप ਲੋਕਾਂ भी ਦੀ अपनी ਕਮੀਜ਼ਾਂ जान ਚੁੱਕ छोड़ो ਚੁੱਕ ਕੇ ना। ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇ ਮਾਰਦੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता मोहतरम। हो सकता है मैंने भी, चलो जी, कृष्ण भगवान ने अगर 18,000 बीवियां रखी थी, ठीक है, उसके पीछे उनका भी कोई मकसद होगा, मंतक बयान करते होंगे आप लोग। अब चूंकि मैंने उसको गहराई के साथ नहीं पढ़ा, अब मैं क्यों इतराज करूं उसके ऊपर? अक्लमंदी की यही निशानी होती है, पहले पढ़ो फिर इतराज करो। आपसे मैंने पूछा यार आप नहीं मानते, छोड़ दें, आपका फिर सवाल करने का जो ना लॉजिक भी नहीं बनता। आपने कहा मैं इंसानियत को मानता हूं, मैंने कहा कि भाई आपने इंसानियत किस किताब से ली है, उस किताब का तारुफ करा दें, हम भी चले उस इंसानियत के तरफ चले जाते हैं। एडी बड़ी इंसानियत ला के फेरे जे तुसी कहाँ गए, चले गए? उतारा तो नहीं किसी ने भाई ने इसको? उतारना किसने, सारे बिजी हैं। चलो,
ये चले अटवाल गए साहब मैं आए नीचे, इनसे अगर बात करनी है तो। जी अतवाल हाँ साहब जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, राहिल साहब क्या हाल है? शुक्र है मलिक, आप बताओ। नहीं, आपसे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी अटवाल साहब, खैरियत से हैं, आप बताएं। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अतवाल साहब आप कौन है प्यारे भाई? थोड़ा तारुफ करवा दें प्लीज। इनका जमात से ताल्लुक है। जी प्यारे। हाँ जी राहिल साहब, आपसे यार एक दो सवाल करने हैं यार। सर अपना करें, तारुफ तो करें। करवा दें प्यारे भाई, किसी महफिल में आते हैं कोई सलाम दुआ के बाद जो है तारुफ तो कर दें। सलाम कर दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ठीक है। हाँ जी राहिल साहब। चले ये मुसलमान नहीं है जी, कादियानी है, कादियानी। और यार एक बंदा कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, तो फिर तुम जो मर्जी कहते हो, क्या फर्क पड़ता है? चलो आप बता दें, अपने मुंह से बता दें हाँ आप कौन है प्यारे भाई, आप जी, कौन मैं है बता बता दूं दें। यार, मुसलमान हूँ, चलो मुसलमान। मैं कलमा पढ़ के सुनाऊं? कलमा पढ़ के सुनाऊं? यार कलमा तो मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुना देगा, मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ अद्दी कुरान पढ़ के सुना देगा। तेरा मतलब क्यों है? मुसलमान मैं नहीं मुसलमान से कहेंगे वो यार, आप जो मुंह से कहेंगे वही है ना अल्लाह के बंदे। जब मैं मुंह से कहूंगा मुसलमान हूँ तो मुसलमान हूँ, आप जो मर्जी समझते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप को कहीं क्रिश्चियन है, मैं आपको हिंदू समझता हूँ, फर्क पड़ता है इससे? बिशप भाई एक लॉजिक का जवाब दीजिए। नहीं, कौन से मुसलमान है? आपको आप मुसलमान है बता रहे, मुसलमानों में बहुत सारे जो है ना फिरके हैं। बिशप भाई एक मिनट ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। जी मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को क्रिश्चियन कहें अगर, ठीक है? नहीं, मैं कौन नहीं किया? मैं नहीं कहता, मैं अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहता। बताएं आप क्या, मैं नहीं कहता। चले आप क्या है, बताएं क्या है? मैंने बता तो दिया यार, पहले भी बताया, दोबारा बताता हूँ। मैं ख्रिस्ती हूँ, मैं गलीली मिज़राखी इफ्राइमी यहूदी मानता हूँ अपने आप। ठीक है, आप वो है, ठीक है। मैं अगर आपको आप हिंदू है, ऐसे कोई फर्क पड़ता है? बता दे, आप भी बता दे। हाँ जी, मैं फलाने फिरके सर का मैं ये हूँ, बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ क्या, बिशप साहब सवाल का जवाब देना, मैं आपको कहूँगा आप हिंदू हैं, आपको कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है। जब मैं हूँ नहीं यही मैं कह रहा हूँ। हाँ तो जी, आप मुंह से जब कह रहे मैं हैं हूँ वो है, नहीं। ठीक है ना? हाँ बिशप भाई हाँ देखिए, बात छोटी करते हैं ना, जो आप मुंह से कह रहे हैं ना वो है, ठीक है ना? मेरा ये फर्ज बनता है, जो आप मुंह से कह रहे हैं मैं आपको वही मानूं जो आप कह रहे हैं। आपके कहने से बहुत नहीं जाते। मैंने बताया, देखें मैंने दावा किया है, मैं सर यही मैं तो मैनेज कर रहा हूँ। जब मैं अपने आपका आप को कोई तराज है तो कहें, मैं आपका तराज दूर कर देता हूँ। बिशप साहब कौन से मुसलमान है? मैं मुसलमान हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला। आप बताएं। ओ ये वाले तो, ये तो सारे इनकार कौन सा करते हैं? उनको इनकार करते तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। आप हाँ, तो ये तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जमातें अहमदिया के ब्रॉड पे जब भी हम जाते हैं, उनसे यही सवाल, अकीदा बताओ जी। और सबसे पहले जी अकीदा बताओ जी, अकीदा। बिशप साहब आपसे बात नहीं मैं कर रहा, मैं ऊपर राहिल साहब से बात करो। क्या हो गया आपने जरूर हर किसी की मतलब अभी वो हिंदू आया था, उसको आपने वो पीछे किया, कहना शुरू कर दिया तू कादियानी। यार हिंदू थे ना, देखिए भाई, आपसे पहले हिंदू से बात हो रही थी, उसने कहा मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा कौन से हिंदू हैं? उसने बता दिया कादियानी है भाई, उसने बता दिया मैं फलाना हिंदू हूँ। अच्छा छोड़ दे, आपकी खत्म हो गई है। हाँ जी, हाँ। उससे किसी मुसलमान से बात कर लेते हैं। हाँ जी राहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अटवाल साहब, बोलिए। राहिल भाई, ये जो अकीदा खत्म नबूवत है, हाँ जी, ये इसका क्या मतलब है? तो जिसका आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, क्या चीज़? अकीदा खत्म नबूवत आपने इससे पहले कभी नहीं सुना इसका मतलब, मानी मफहूम? सर आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप क्या समझते हैं? नहीं, आपने इससे पहले कभी मैंने सुना तो है ये बहुत लफ्ज़? लोगों से डिफरेंट सुना है। क्या सुना है आपने? आप क्या समझते हैं? आप बताएं ना अपना, आपने क्या सुना हुआ है खत्म नबूवत मैंने से सुना है मतलब? जी, कीड़ा खत्म नबूवत है, वो सामने रेड लाइट है, गाड़ी खड़ी हो गई, ये मैंने सुना है। अब आप बताएं, आप क्या समझते हैं? किससे सुना है आपने ये? हैं? किससे सुना है आपने? आप किधर मुंह मारते रहते हैं? आपको मतलब ये किससे आपने सुनी है? आगे सामने लाइट खड़ी है और वहां पर रुकना है, ये खत्म नबूवत है। अटवाल राहिल साहब साहब कोई खत्म हो गया, माकूल आपने बात कीड़ा करें। क्या बता रहा? अटवाल साहब सर देखें, सवाल किया आपसे, सवाल का जवाब जो दें। जिस तरह की चालाकी होशियारी आप सर सवाल करना का चाह रहे जवाब हैं देना। ना, वो सब खत्म चीजें नबूवत समझते क्या हैं हम चीज़ लोग। है? खत्म बात नबूवत ये है कि क्या चीज़ आपने है? इससे चलें बताएं। पहले खत्म नबूवत कभी नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, आप बताएं। चलें। चलें ठीक है, नहीं सुना तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं। हाँ जी, बताएं जी, सीख के खत्म नबूवत जाइएगा, क्या है? चलें बताएं, अच्छी तरीके बताएं से खत्म सीख नबूवत कर क्या है? जाइएगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप म्यूट रखें, अच्छी तरीके से सीख कर जाइएगा। हाँ जी, बताइए खत्म नबूवत क्या है? खत्म नबूवत ये है
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. جتنے انبیاء آنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے, بعثت ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہے حق نبوت. اچھا اب یہ بتائیں کہ نبی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آ گئی. آگے چلیں نا, آگے چلیں. کیا سمجھ میں آئی پہلے وہ بتائیں. یار یہ کیا بکواس کر رہے ہو آپ کو بات جو میں نے بات کہی ہے آپ کو, اب اس سے آگے چلتے ہیں. اچھا آپ کو نہیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ نے کیونکہ اس سے پہلے ختم نبوت کبھی سنا نہیں تھا, آپ کو فرسٹ ٹائم یہ تعارف ہو رہا ہے. آپ نے جس چیز کا جواب دیا سوال کیا سمجھ آیا آپ کو؟ آپ کو سوال کیا سمجھ آیا؟ آپ کو سوال کیا سمجھ آیا ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ ختم نبوت سنا ہے, ختم نبوت کا نام سنا ہے, اس کی تعریف آپ نے سنی ہے. ایک دفعہ ریپیٹ کر کے بتا دیں آپ کو سمجھ میں کیا آئی ہے. ختم ہو گیا دین تمہارا راہیل صاحب. ایک سوال پوچھا ہے آپ سے. ہیلو آرام سے بات کرنی ہے, کیا آرام سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. اور تم سے وہی نہیں جواب دیا جا رہا. ایک سوال ایک جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے. جال کے پیروکار آرام سے بات کرو اور تمیز سے بات کرو. تمہارے پاس ہے نہ تمہاری نسلوں کے پاس ہے. میں نے آپ یار پیار سے جواب دے بھی دیا تو وہ بھی اس کو قبول نہیں ہے. کیا معاملہ ہے یہ بدتمیز آدمی تھا. نہیں کہتے یہ لوگ ہیں کہ ہم سے آرام سے بات کرو, طریقے سے بات کرو. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کو پہلے ہی چھڑ دیتا, اتنا جواب بھی نہیں دیتا کوئی, یہی اس بات کو منہ بھی نہیں لگاتے کوئی. ایسے ہی ہے نا, پیار سے جواب بھی دے دیا, اس کے باوجود یہ بھڑک رہا ہے بندہ. بکواس کرتا ہے, تمیز نہیں ہے اس کو بات کرنے کی. تو ہوتا ہے نا انسان کے کسی سے کوئی مجلس میں بیٹھا اگر گفتگو کرے تو گفتگو کے آداب بھی ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے گفتگو کے آداب کیا ہیں. ہم یہی بات کرتے ہیں, مرزائیوں سے بات اس لیے نہیں ہو پاتی کہ یہ خود آنیسٹ ہی نہیں ہے کسی بات میں. بالکل یہی بات ہے. وہ جو مفرور اور دوسرا یہ تیسرا یہ جو 8-9 بکتے رہتے ہیں, بات ہی نہیں کرنے دیتے کسی کو. تو یہاں تو آپ نے اکیلے جواب دیا اس کو, تو پھر بھی بکواس کرتا ہے. تمیز نہیں ہے نا ان میں, اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ چیز نہیں رکھی ہے, اخلاق نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ بہت حرامی آدمی ہے. جی جانتا ہوں خلیل صاحب, ان سب کو میں جانتا ہوں, یہ بھی مجھے جانتا آپ بول رہے تھے پر میں اگر بولتا تو یہ 1 منٹ بھی نہ نکالتا. تو اب اس نے منہ پر ہی جھوٹ بول دیا کہ ختم نبوت کی تعریف کبھی نہیں سنی اس نے. اس سے پہلے اس نے جو تعریف کی وہ کسی سے, جان ہے نا, تو یہ پبلک کے لیے ہے نا جو نیچے سن رہے ہیں نا. راہیل بھائی یہ ایسے لانتی انسان ہے کہ جس کو مانتے ہیں نا یہ اس کا ترجمہ بھی نہیں لیتے. نہیں یہ حرامی آدمی, یہ اس سے بھی زیادہ سیانے پیدا ہو گئے ہیں. مرزا نے خود لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا, کوئی بھی نہیں آ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, اور یہ نبوت جاری کرتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے ادھر. یہاں پہ مجھے ایک کنفیوژن ہے, اگر کوئی بھائی ذرا دور کر دے. مرزا صاحب کا نبی ہونے کا دعویٰ تھا یا ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ تھا, یہ بھی کلیئر نہیں ہے. آدھے جو ہے نا یہ رونا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ذلی بروزی نبی ہیں, کوئی کہتے نہیں کہ وہ حقیقی نبی ہے. بشپ بھائی اس میں بھی کنفیوژن ہے ان کی. نہیں بشپ بھائی یہ خود کنفیوز ہیں, یہ خود کنفیوز ہیں اس بات میں. مرزا کا ہر قسم کا دعویٰ ہے, اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہوا ہے. جی بالکل. میں نے پڑھا تو نہیں ہے لیکن آپ بھائیوں کے منہ سے ہی سنا ہے, اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ آپ لوگ بات کرتے ہیں. ہاں جی موجود ہے, لٹریچر اس کے میں موجود ہے. جی اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ نبوت بند کر کے بتا رہے ہیں ان کو, یہ ڈیلی نبوت جاری کر رہے ہیں. کوئی حال نہیں بھائی, خدا رحم کرے ان کے اوپر. پتہ کیا ہے, مرزا خود حرامی ہے تو اس کے آگے جو آدمی ہے نسل ہے جو اسی وہی ہوگی نا. جیسا باپ ہوتا ہے ایسے اگر نسل ہوتی ہے نا. یہ لے لیں کسی مرزائی کے اوپر لے لیں. میں ایکچولی کام پہ جا رہا ہوں, میرے پاس 5-10 منٹ ہیں.
जब तक मैं काम पे नहीं पहुंचता तो मैं खत्म नबूवत बता देता हूँ प्यारे भाई, जो मुझे समझ आई। अगर मैं गलत समझाऊं तो कोई मर्जी आके समझा दे, फिर खत्म नबूवत आगे कोई है तो हिम्मत कोई नहीं करेगा ना आने की। चले मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, पर मैंने जितना लिटरेचर इस्लाम का पढ़ा है, मुझे खत्म नबूवत का जो है ना कंसेप्ट समझ में आ गया। आप आके मुझे करेक्शन कर दें कि भाई ये गलत है। अच्छा, अभी ऊपर वो बात चल रही थी शाह साहब की ना, अंता मिन्नी भी मंजिलती वलदी। हाँ जी। अब उसके नीचे जो उसकी क्लैरिफिकेशन दी हुई है मिर्जा कादियानी की, वो इससे भी खतरनाक है। बिल्कुल, मुझ जैसे बंदे को, हालांकि मेरा कोई अकीदा ईमान नहीं है, लेकिन उनकी तहरीर से मुझे तो एंजल बहन पे भी मुझे बड़ा हैरत है। दावा कर रहे हैं कि मुझे पे अल्लाह ताला ने इल्हाम किया है, तो इल्हाम का कोई मकसद तो होता है ना। चले वो कहते हैं कि जी इस्तारा के रंग में, वो इस्तारा के रंग में कुछ मैसेज तो है ना उसके अंदर। वो मैसेज वही यही जैसे तो है ना अल्लाह ताला जो ने अपनी किताबें भेजी हैं, अंबिया के जरिए इल्हाम ही किए ना, और उसके अंदर हमें उन बातों के अंदर हमें मैसेज मिलता है कि भाई ये अल्लाह ताला जो हम अपने बरगजीदा लोगों के जरिए हम तक जो बातें पहुंचा रहे हैं, ये अल्लाह ताला असल में ये कहना चाह रहे हैं। तो चले जी इस तारा के रंग में भी मिर्जा साहब के ऊपर है, तो इस तारा के रंग में क्या साबित करने की कोशिश की अल्लाह ताला ने, बताओ तो सही आप। नहीं जी, सजा बता दो। इस तारे के रंग में वो यही बताने की कोशिश की है कि जो इस ईसाइयों का जो दावा है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहराने का, ठीक है, उससे भी बढ़कर अब इनको इस साजिश को जो है ना ये अल्फाज नहीं है ही नहीं ना। मिर्जा साहब ने इसका भी मैं तो ढूंढ के तंग आ गया हूँ, मुझे तो नहीं मिला कि मिर्जा साहब ने कभी कोई हवाला बाइबल में से कोट करके बताया कि ये देखो जी बाइबल के मुताबिक जो है ना यीशु मसीह खुदा है। ठीक है, जब है दावा, वो तो तुम्हारा भी दावा जिल्ली बरूजी होने का, तुम साबित कर सकते हो, नहीं कर सकते। हाँ जी, देखें अनिल भाई, बात ये है कि कुरान में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि नसारा ने जो है हजरत ईसा वो तो भाई आपका और हमारा आपस का मसला है ना। नहीं, मैं वो अल्लाह पर कुरान का तो सीधा असलूब है कि ये चीज गलत है जी, ठीक है ना। बिल्कुल, आप अगर कोई शख्स आकर कहे कि ये चीज गलत है, बल्कि इससे बढ़कर जो है ना मुझे स्टेटस दिया गया है, तो इसका क्या मतलब समझे हम? इसका मतलब है कि सारे खाने चित कर छड़े। वो जो नसारा जो अकीदा रखे हुए, चलो उसको हम नहीं छेड़ते, लेकिन अब हम उससे बड़ा, मैं ज्यादा जो है पहलवान हूँ। हाँ जी, जब आप किसी चीज का रद्द कर रहे होते हैं तो आप साफ अल्फाज में बोल देते हैं कि ये अकीदा गलत है, जी जी, उसके पीछे जो भी आपकी दलील है। लेकिन अगर आप उससे बढ़कर आप कह रहे हैं कि मैं जो है इस अकीदे से बढ़कर जो है मुझे नाम दिया गया है, तो इसका मतलब आप उसको एंडोर्स भी कर रहे हैं उस अकीदे को, और उससे बढ़कर जो है अपने आप को आप इनकार तो नहीं ना कर रहे। अगर उस अकीदे को आप गलत कह रहे हैं तो आप इनकार नहीं कर रहे, उसका इनकार नहीं कर रहे आप, उसको बल्कि दो तीन मंजिलें आगे बढ़कर बयान कर रहे हैं। मुझे तो सीधा सीधा यही समझ आती है भाई। तो यही बात जो है वो शाह साहब समझा रहे थे। बिल्कुल, मुझे समझ आ रही थी, मुझे बिल्कुल बात सारी समझ में आ रही थी। शाह साहब की सारी बातें जो थी वो बिल्कुल काबिल कबूल थी और दलील के साथ वो बात कर रहे थे, ठीक है, पर वो मान नहीं ना रहे थे। वो पता करनी जी इसमें जी शिरक ही तो है, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने कुफर किया जिन्होंने बेटा बना लिया। पर यहाँ पे मिर्जा साहब बेटे का तो जिक्र ही नहीं ना कर रहे, यहाँ पे तो खुदा के अकीदे को बेटे में मिक्स कर रहे हैं कि उम्मत में एक बेटा है। अल्लाह ताला बेटों से पाक है, लेकिन उम्मत में एक है खुदा का जो है। फिर आगे चल के मैंने मेरी नजर से एक तहरीर गुजरी थी कि उन्होंने खुदा का भी था कि मैंने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूँ, मैंने मान लिया कि मैं खुदा हूँ। तो मिर्जा साहब ने तो खुदा होने का भी दावा कर दिया। चले उसको भी आप आके यही कहेंगे कि भाई इस तारे के रंग में, चले बताइए तो सही, और इस तारे के रंग में ये सारे दावा जात के पीछे मैसेज क्या है? ये वाहिद वो इस्तारा, अभी आप बात कर रहे थे कि इस तारे के रंग में बात होती है जिसकी वैल्यू उस तरह नहीं होती, हकीकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये मिर्जाइयों का इस्तारा ऐसा है कि वो हकीकत से भी बढ़कर होता है। वो बिल्कुल नहीं, हकीकत से ताल्लुक नहीं रखता। जिस तरह इस तारे के रंग में ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया,
तो वो भी जो है हजरत ओरिजिनल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर जो है वो इसी के अंदर ही लिखा हुआ है। नहीं देखिए, इस्तारा का रंग जो है को बाइबल में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा और तमसीली कलाम, बाइबल तो आधे से ज्यादा है ही सारा तमसीली कलाम। अभी वो आके सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स की बात कर रहे थे, तो आपको पता है शायरी जो होती है, शायरी होती ही सारी इस्तारे के रंग में, और सॉन्ग ऑफ सोलोमन यही है कि उसमें मियाँ बीवी का जो है ना रिश्ता बयान किया गया है, जबकि मियाँ जो है, मियाँ और बीवी किसके साथ तशबीह दी गई है उसको समझने की जरूरत है। जिनके ऊपर जिनकी किताब है उनसे पूछो, वो बताते हैं।